चलो. My name is Navdeep and today we will discuss geography section of test number 1. And there are total 9 questions related to geography, okay? तो आप लोगों ने लिख लिया, पूरा किया अटेम्प्ट 20? और अच्छा अच्छा, चेक हुई कॉपी? जी. कितना है? सर मेरे 98. और तुम्हारा? सर मेरे 75. चलो ठीक है. वो कोई इसलिए बोलते हैं ना, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फर्स्ट अटेम्प्ट 20 मार्कर, 15 मार्कर एंड देन 10 मार्कर. ये अपोजिट करोगे तो रेशियो बढ़ जाएगा. चलो, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर आई विल टेल यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी. ठीक ना? जो भी टेस्ट लिखता है उसके लिए स्टोरी है. वो देखा है रिवॉल्वर, बंदूक बहुत हैवी होती है, तो अभी तुमको कोई देगा चलाने के लिए, देन यू विल स्केयर्ड कि कैसे करें. लेकिन वंस यू फायर तो तुम्हें आदत सी हो जाएगी उसको फायर करने की. तो जस्ट ब्रेक योर ब्रेकिंग पॉइंट. कभी भी टेस्ट स्टॉप नहीं करना है. स्टॉप किए छूट जाएगा, फिर कभी नहीं लिख पाओगे. जो छूट गया उसे हटा देना, जो स्टार्ट हुआ है उसे लिखना. सो वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट ए केस डिस्कसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ डिसैलिनेशन प्लांट्स फॉर इंडिया and also talks about the merits and the demerits of different technology available within the country. So in introduction, कॉपी पेन से नोट करते जाना. खैर कुछ एक्स्ट्रा होगा क्योंकि आई विल डिस्कस ओनली द पॉइंट्स, ओके? क्योंकि पॉइंट्स लिखोगे तो नंबर मिलेंगे. So in introduction we will define what do you mean by desalination, okay? Desalination is the process by which saline water is converted into the fresh water, okay? So this should be the introduction. In introduction we will define what do you mean by desalination. So the second part of the question is why there is need for the desalination plants in India. In introduction we will give the example of Chennai and Lakshadweep. उसमें दिया हुआ है, okay? So what is the basic reason why we choose desalination plants? The first reason is that we have approx 16% of the world population and that is supporting, and we have approx only 4% of water resources. With increasing population, तो demand अधिक है, supply कम है. Then there is requirement of desalination plants in India. This is the first reason. The second is dispute related to water, interstate water disputes and all. That is the second reason why we choose desalination plants in India. What should be the third reason? The third reason is, as we all know that in India we basically depend upon monsoon. The third reason, monsoon. So if we depend upon monsoon and because of global changes in temperature, there is irregularities in monsoon. So the rainfall, the amount of rainfall, the average rainfall in India decreases. So that is the reason why we choose desalination plants in India. These are the basic reasons why we have to choose. Now in the introduction is over, why we choose the third, the next topic is technology. इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होता है, ओके? ऐसे फॉर्मेट में बना रहा हूं, फॉर्मेट में पॉइंट्स लिखते जाना, तो ये पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So technology, reverse osmosis technology, as we all know that reverse osmosis technology, and the second technology is low temperature thermal desalination. These are the two technologies by which we can convert saline water into the fresh water. Now what should be the third thing? What are the problems, means demerits related to this? The first is the production cost is high. Very simple, सबने लिखा होगा general answer. Production cost is very high. Now what should be the second? Energy intensive. What should be the third point? The waste which is generated after desalination, the waste which is generated is dumped into the oceans. That increases the salinity of ocean. और जब salinity increase करेगा कभी भी ocean का, then what happens? It is very difficult for corals or the marine organisms to live. So this should be the third point in demerit. So this is all about question number first. ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट्स लिख लो, कभी भी काम आ सकता है, ओके? सर ये रिवर्स ऑस्मोसिस और लोड, हाँ हाँ,
ये जो सेकंड टेक्नोलॉजी, इसको कंडेंसेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन द सेंस आप सेलाइन वाटर को लो, उसे घर में हीट करो, तो जो वेपर बनता है दैट अगेन उसको कंडेंस करेंगे, उससे वाटर बनता है। तो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है वो। और रिवर्स ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन यूज होती है, और मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्ट अलग हो जाता है और जो फ्रेश वाटर होता है वो अलग हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी होता है। इसको उतना डिस्कस नहीं करना है, बस यू हैव टू मेंशन दैट पॉइंट। ये कितने मार्क का था? 10 मार्क का, तो बहुत है। हम मेरिट्स हुआ ना कि भाई देखो, अगर मेरिट्स लिखेंगे तो जो हमने ये डिस्कस किया ना, वाई वी यूज दिस टेक्नोलॉजी, तो अब वाटर स्कैरसिटी है तो उसको फेडअप करेंगे कि वाटर स्कैरसिटी अब नहीं होगा, सबको मिलेगा फ्रेश वाटर। अभी चेन्नई में क्राइसिस चल रहा है, पता है कि नहीं, वाटर का अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो डिक्रीज कर गया है। अब दूसरा मेरिट्स क्या हो सकता है इसका? जो डिस्प्यूट्स जो आपके हो रहे हैं, वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कभी भी बेंगलुरु में जाना, वहां जो सबसे बड़ा माफिया है वो वाटर का काम करता है, उसका लीगेसी है वाटर की। तो जो डिस्प्यूट्स होगा, जो अभी ये डिस्कस किया ना, व्हाई वी चूज, दैट विल बी द मेरिट्स, उसको आप उसमें लिख सकते हो। हाँ, हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट इज, अब देखो, अगर डाटा याद हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं, आप लिख दो। लेकिन अगर डाटा नहीं याद है तो जनरल लिख सकते हो। डाटा लिखते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि यू हैव मोर देन 500 टॉपिक्स याद नहीं होंगे, इंट्रोडक्शन डिफिनीशन याद नहीं होगा, डाटा कहाँ से याद होगा? याद है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, उसको लिखो, नंबर बहुत अच्छा आएगा। तब प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है इसका जनरली में। सर जैसे इसको ऐसे मेरिट्स में या फिर वैसे, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोस्टल इंडिया में 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। हाँ, बहुत ज्यादा, अगर टेक्नोलॉजी आगे जाके अच्छी हो जाती है, अरे मेरिट्स में बोल देना यार, एग्रीकल्चर में यूज हो जाएगा, बहुत चीजें है ना। इसकी फीजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हमें, टू लोअर डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? हाँ, तो देखो कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे डिक्रीज होगा, जब आपका टेक्नोलॉजी हाई इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करोगे, तभी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगा। अब तुम ले लो सेलाइन वाटर को, ले लो और घर में गैस पे ऑन कर दो उसको, फ्रेश वाटर बनाने के लिए 1 सिलेंडर खत्म हो जाएगा और पानी मिलेगा 1 लीटर। जैसे पॉइंट्स बता रहा हूं उसे नोट कर लो कि फिर कभी देखने की जरूरत ना पड़े मॉडल आंसर वगैरह कुछ भी, क्योंकि जितना पॉइंट्स बताया अगर इतना लिख दिया देन डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट लिया कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या ना, ऑप्शनल, व्हाट्स ऑप्शनल? लॉ एंड व्हाट्स मैनेजमेंट। चलो ये तो सिंपल है। The question is explaining the salient features of the continental drift theory. Enumerates some of its shortcomings and how these shortcomings addresses in the subsequent theories. Take. So we will discuss first continental drift theory in introduction itself. Take. The concept was given by Alfred Wegener in 19 याद है? 1920 अप्रॉक्स। हाँ, अल्फ्रेड वेजनर ने दिस कंसेप्ट दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। व्हाट इज द एम, व्हाट इज द बेसिक मोटिव बिहाइंड दैट, कि उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो कंसेप्ट दिया उसका बेसिक रीजन क्या था देने का? तो वो इसलिए दिए थे, एक्सप्लेन द मूवमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कि व्हाई कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, टू एक्सप्लेन द मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग जियोलॉजिकल टाइम्स। मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ एविडेंसेस से पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो उसमें फीचर्स में भी वो यूज हो सकता है। ठीक, फीचर्स जो पूछा है, एज वी ऑल नो दैट देयर इज अ लैंड मास, इसको क्या बोलते हैं? पेंजी। हाँ, अच्छा,
and water, Panthalassa. So what happened during Carboniferous period? ये दोनों डिवीजन हुआ. There is the division of this land mass, and there is division of land mass. One is called Angara land and second is called Gondwana land. And the components of the Angara land were North America, Europe and Asia, and the components of the Gondwana land, Australia, India, Africa and South America. अब हुआ क्या? With the passage of time, there is equatorial movement of Gondwana land. Due to the there is movement towards equator of the Gondwana land because of gravitational forces. Okay, and there is westward movement of Angara land because of tidal forces. समझ में आया है? There is division of this Pangaea, Angara land and Gondwana land. The Angara land moved towards west because of the tidal forces, and the Gondwana land moved towards equatorial region. अभी जो ये region अभी भी movement हो रहा है, ठीक? And in between these there is called Tethys Sea. पढ़ा है कि नहीं इसको? So this is all about the concept given by Alfred Wegener related to continental drift theory. So the question is, explaining the silent features of the continental drift theory and enumerate some of its shortcomings. What are the shortcomings? And later on, how are these shortcomings addresses in the subsequent theories? तो वो तो हम बाद में करेंगे. अभी इसके बाद evidences देख लेंगे. Evidences को ही हम features में लिख सकते हैं, ठीक ना? Jigsaw fit पता ही होगा. The first evidence is jigsaw fit. What is the second evidence? Third evidence? फॉसिल फ्यूल्स का प्रेजेंस और प्लेट ग्लेशियर का जो सेडिमेंट होता है. वो ठीक. These are the evidences, and in evidences evidences will be mentioned in features, ठीक ना? So we will discuss the shortcomings of this theory. ये क्वेश्चन ये 15 अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो जो एविडेंसेस हैं इनके डायग्राम्स बनाना ठीक रहेगा. देखो, इन ज्योग्राफी सेक्शन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा. डायग्राम बनाओगे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा. सर जैसे आप 10 नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बनाएंगे? नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? ये अंगारा लैंड प्लान. ये वाला बनाते हैं. हाँ? ये एविडेंसेस वाला है. हाँ एविडेंसेस वाला छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें भी एविडेंसेस वाला बस एक सिंपल यही है ना. ये एक साउथ अमेरिका का है और ये अफ्रीका का जो डायग्राम है यही तो है. तो जैसा क्लासिक फ्यूल है उसमें क्लासिक फ्यूल में एक फॉसिल फ्यूल है, लॉस ऑफ फिट्स. हाँ वो नाम वो सब पूरा डायग्राम. नहीं वो नहीं करना. इतना करोगे तो नंबर कहाँ मिलेगा? 10 नंबर में कितना बाकी छूट जाएगा? 20 नंबर वाला छूट जाएगा. हाँ उसमें अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी है. और हाँ तो ये हो गया द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस थ्योरी. टाइडल फोर्सेस और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, दे आर टू वीक फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट लैंड मासेस. पहला. व्हाट शुड बी द सेकंड? सेकंड क्या होगा? Only continental part we discussed. I mean, all the evidence which he gave, they all relate to continental part, and the oceanic part was not explained. देखो एक सेकंड पार्ट ये है कि he gave the concept Sial is floating over Sima. ठीक ना? Means the upper part, Sial means silicon plus aluminum is floating over silicon plus magnesium. मतलब upper crust is moving over lower crust without any frictional force. तो ऐसा हो सकता है? Is this possible? नहीं हो सकता है. So this should be the second important criticism. अब second आया how were these shortcomings addresses in the subsequent theories. So we will discuss two things. Sea floor is spreading by Harries, and the second is plate tectonic theories. तो नोट कर लिया?
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा है कि नहीं? यस सर। पता था मिलंकोविच साइकिल? हाँ सर, पता था। मतलब इसमें जो क्लीन वो होते हैं ना, इसेंट्रिसिटी और क्लीन जो वर्जन होते हैं, मुझे केवल एक पता था, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें एक्सिस पे जो होता है, मेनली मैंने एक्सिस पे लिखा है। मुझे सर लिखा हुआ डोंट क्लब, मैंने लिखा आंसर लिखा डोंट क्लब, जीरो नहीं है। देखो, अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच, मतलब कुछ नहीं पता है, तो जनरली अवॉइड दैट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कुछ भी इधर उधर का लिखोगे, कितना मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। टाइम कितना जाता है? 5 से 6 मिनट। ठीक, जस्ट यूज दैट टाइम, और उसी के जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो तुम बोल रहे हो कि बहुत लेंदी है, उसमें यूटिलाइज करो, देन यू विल गेट 2 मार्क एक्स्ट्रा ईयर। और दूसरी चीज, एग्जामिनर गुस्सा नहीं करेगा। सर इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा, हाँ। इन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डायरेक्टली सीधे पूछी हो, इसमें कंक्लूजन क्या होना चाहिए? क्या? जैसे इसमें सीधे पूछा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर थ्योरी क्या थी, बाकी और थ्योरीज क्या थी, तो मतलब इनको बताने के बाद कंक्लूजन वाला जो पार्ट, तो कंक्लूजन में लिख रहा है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही कंक्लूजन देंगे हम। वी विल डिस्कस ओनली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बिकॉज दिस वन इज द रीसेंट थ्योरी एंड दैट शुड बी योर कंक्लूजन। अब इतना लिखने के बाद भी एक्स्ट्रा कंक्लूजन लिखने के लिए पेज नहीं होगा, वहां लिमिटेड पेज होते हैं। लिखा है कि नहीं मेंस? हाँ, तो वहां पेज लिमिटेड होते हैं। इन कंक्लूजन सेक्शन और इन लास्ट सेक्शन वी विल डिस्कस ओनली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसमें भी अगर डायग्राम बनाने लोगों को, तो प्लेट टेक्टोनिक का अलग बनेगा। हैरी एंड एस, हाँ, मैंने जो कंक्लूजन लिखा है वो मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पहला पार्ट वो था, मैंने इसमें लिख दिया कि सिंपली 10 कॉन्टिनेंटल बताने के बाद, टेक्टोनिक बताने के बाद 10 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन स्पाइट ऑफ इट्स शॉर्टकमिंग्स गिव वैल्यूएबल इनसाइट फॉर सब्सिक्वेंट थ्योरीज टू बिल्ड अपॉन। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, एक होता है पेपर सब्जेक्टिव होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो मेंस इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिविटी। इन सब्जेक्टिविटी नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज राइट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। तो जो तुमने लिखा दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन बहुत लोग बहुत डायमेंशन से लिखेंगे, क्योंकि इसमें देयर आर 3 क्वेश्चंस इन अ सिंगल क्वेश्चन। चूज करना मुश्किल है कि हाँ। इसको पकड़ के रखा जाए। तो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है उसमें। So we will discuss the question number 6, and the question is, what are the Milankovitch cycles and what is their role in climate change? तो generally very specific question or very specific answer. Intro, we will define it. माइनर चेंज इन अर्थ पोजीशन रिलेटिव टू सन, लिख लीजिए उसको, लिखा होगा माइनर चेंज इन अर्थ पोजीशन रिलेटेड टू सन इज नोन एज मिलांकोविच साइकिल। इट हैज 3 कंपोनेंट्स। चाहे हम बोल सकते हैं कि द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन बी अफेक्टेड बाय 3 वेज, एंड इन दिस वी विल डिस्कस 3 थिंग, 1, 2 and 3. The first is eccentricity, the second is obliquity, and the third is precession. अब इनको एक एक लाइन में हमको डिफाइन करना है. What should be definition of that? The shape of Earth orbit, eccentricity is known as the shape of Earth orbit. Obliquity is known as the angle of Earth axis, and the third is precession, direction of Earth axis. Your direction, angle, and this one is shape. So यहाँ ये आपका part 1 is over of this question. अब how these things affect the solar insolation or solar radiation? When these things changes, और ये ऐसे आसानी से नहीं होता, it will take millions of years to change. तो जब भी ये changes होते हैं, then there will be change in insolation. अभी आप वहां बैठो, अगर एंगल इधर चेंज हो जाएगा, देन इधर का नहीं दिखेगा, उधर दिखेगा. द सेम थिंग हैपेंड टू सन with their insolation on the earth surface. So we will discuss in detail, not in detail but in one line, eccentricity, obliquity and precession. Now the second part of the question is, what is their role in the climate change? So the first,
उसमें मॉडल में भी मेंशन किया होगा, विंटर बिकम माइल्ड विंटर एंड समर बिकम माइल्ड समर। मतलब समर विल बिकम कोल्डर अगर ऐसा होगा तो, एंड विंटर विल बिकम वार्मर। दिस विल बी द फर्स्ट। इन केस ऑफ फर्स्ट इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट। हाँ। द सेकेंड थिंग इज लेस मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो। अभी बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो देयर इज इंक्रीज इन द सी लेवल, बट व्हाट हैपन व्हेन दीज फिनोमिना हैपन, there will be the decrease in the sea level। ये होगा। These are the two things। The third is very important। और जो sea level ये बता रहा हूं, sea level, that is also because of eccentricity। हाँ। The third is increase in magnitude of seasonal weather। Increase in magnitude of seasonal weather, this is because of obliquity and precession both। अब ये डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे होता है, क्योंकि यू कांट इमेजिन सच ह्यूज फिनोमिना, लेकिन बस ये ऐसे होता है, ज्योग्राफर्स ने बताया है, हमें जानना है और एग्जाम में ऐसे लिखना है। So there are two part of the questions, Milankovitch cycle with their component and their role in the climate change। Now the question number 8, ये अटेम्प्ट लिया कि नहीं लिया? नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 is tsunami। Explaining the phenomena of tsunami and give some recent instances where tsunami has caused losses to mankind। एग्जाम्पल तो बहुत हो सकते हैं, जनरली ये क्वेश्चन भी उतना लेवल का नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन बस जनरली समवॉट हल्का है। We will discuss the phenomena of tsunami। पता है कैसे आता है सुनामी? वेवलेंथ। वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या है सुनामी में? हाफ ऑफ द वेवलेंथ की हाइट से, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो हाइट ऑफ द वेवलेंथ होती है विद करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस। ऐसे मतलब वो इनवर्स जैसे मुझे याद नहीं था, लिखा भी नहीं था। तो डी पोर्शन में वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो उस वजह से शॉर्टर वेव्स होती है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है वहाँ पे। और जब यहाँ कोस्ट के पास आता है तो डेप्थ कम होती है, वेवलेंथ छोटी होती है, तो हाइट बढ़ जाती है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव होती है कोस्ट पे, इसलिए यही फिनोमिना, मेजर फिनोमिना ऑफ सुनामी। सो इन इंट्रोडक्शन वी विल डिफाइन व्हाट डू मीन बाय सुनामी, और एकदम जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। दे आर कॉल्ड हार्बर वेव्स, और ये जापानीज टर्म है, ठीक ना? सिंपल इंट्रोडक्शन देंगे। नाउ वी विल डिस्कस द फिनोमिना ऑफ सुनामी, मीन्स द कॉजेज ऑफ सुनामी। कॉजेज ऑफ सुनामी, द फर्स्ट कॉज earthquake। What should be the second cause? Landslides। And what should be the third cause? Volcanism। These are the three things that led to the development of tsunami। जैसे पता ही है, in seas the wavelength is very high and at the harbor the height is high, the wavelength decreases। wavelength कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, ठीक ठीक, सही है। सो दिस इज द कॉजेज। अब एविडेंसेस पूछा है, मीन्स एग्जाम्पल्स पूछा है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल्स में 2-3 एग्जाम्पल्स उसमें दिए होंगे, उसमें 2 मेजर है जो डिस्कस करना है। द फर्स्ट इज सुनामी इन इंडियन ओशन 26 दिसंबर। हाँ, ये क्यों हुआ था? हाउ दिस ऑकर? इंडोनेशिया में शायद, Indian plate and Burmese plate, they both collide each other। Indian plate and Burmese plate, and Indian plate subducted under Burmese plate,
ओके, द सेकंड अभी रिसेंट हुआ है एजियन सी में, 2020 एजियन सी, टर्की के पास, टर्की एंड ग्रीस, 2020 में हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, ये जनरली दिया गया है बस। सो दिस इज ऑल अबाउट सुनामी। कॉजेज इंपॉर्टेंट है, ये 3 लिखना, और ऐसे जनरली नहीं लिखना है एग्जाम, ऐसे लिख देना कॉजेज। अगर इसको एलोबरेट करते हो तो दैट इज ओके, यू विल डिफाइन ऑल द थिंग्स। अगर सिंपल लिखना है तो ऐसे लिखना, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज। इसमें ऐसे भी अर्थक्वेक के एग्जांपल लिख दिया, चेन्नई फ्लड, हाँ, चेन्नई सुनामी, कोई वोल्केनो का एग्जांपल मिल जाए जो वोल्केनो वोल्केनो वाला पे तो होता ही है, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तुमने पढ़ा है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कैसे बनता है? क्योंकि वो सबडक्शन जोन ही होता है, बाउंड्रीज के पास होता है, दे आर द सबडक्शन जोन, और वहां प्लेट कोलाइड्स होती हैं, फिर मैग्नेटिक मैग्मा कन्वेक्टिव इश्यूज सेल्स, एंड देयर इज जनरेशन ऑफ वोल्केनोज, अर्थक्वेक। हाँ, तो इसको नहीं, ये बता रहा हूं, एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का, तो एक जनरल एक मोनोटोनस वे होगा और एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what are the factors which influences the flow of ocean current across the world? Attempt clear? चलो, what do you mean by ocean currents? बताओ। मैंने तो लिखा मूवमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। The ocean currents are stream of fast moving water which हाँ। move in clockwise direction and non-convex way and anti-clockwise in southern hemisphere. सविंदर सिंह वगैरह पढ़ा करो तो एक एग्जैक्ट डिफिनीशन भी मिलेगा। दोनों ही सही है अप्रॉक्स, बट इन ए डिफिनिट डायरेक्शन होता है वो, दैट इज कॉल्ड करंट्स। इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। हाँ, इन ए डिफिनिट डायरेक्शंस, मूवमेंट ऑफ ए बैंड ऑफ वाटर इन अ डिफिनिट डायरेक्शन और ए नैरो बैंड ऑफ वाटर। बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, लेकिन जनरली व्हेन यू राइट अ वेरी स्पेसिफिक डिफिनीशन रिलेटेड टू बुक तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा। ये बोलने की बात होती है कि हम ऐसे अपने मन से लिखेंगे, नंबर नहीं मिलता है। व्हेन यू राइट अ स्पेसिफिक डिफिनीशन ऑफ ए स्पेसिफिक थिंकर तो आपको नंबर बहुत ज्यादा मिलेगा। सो इन इंट्रोडक्शन वी विल डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय करंट। The question is, what are the factors which influences the flow of ocean current across the world? The question is very simple. Factors और causes भी इसको बोल सकते हैं, ठीक ना? यही बस करना है। What should be the first cause? जनरली 3 cause हमेशा लिखना, डेंसिटी, दूसरा टेम्परेचर, द थर्ड इज सैलिनिटी। ये 3 मेजर कॉज होते हैं।